ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਜਾਹਿਲ ਜੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਗੈਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾफ़ੀ ਕੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤਾਲਾ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਬਗੈਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਗਲੀਜ਼ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਹੁਤਾਨ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਔਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਔਰਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਿਵਾਏ ਆਪਣੇ ਚਸਕੇ ਲੈਣ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਕਿ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿੜਗਿੜਾਏ ਔਰ ਰੋਏ ਔਰ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਮਗਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੋ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਹਨਤੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਿਲਾਫੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੈਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੋ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਛਾਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਛਾਲੋ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਐਬਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਾਓ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਾਤੀ ਗਲਤੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਦਕਾਰੀ 'ਚ ਮੁਲਵਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਰਤੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੀ ਔਰਤ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਹੁਣ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ, ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਤੇ ਲੋ ਨਾ ਸਰ, ਸੁਣ ਤੇ ਲੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕੀ ਦੱਸਣਾ? ਮੈਂ ਐਸੇ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਦਲੀਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਦਲੀਲ ਤੇ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਦਲੀਲ ਦੇਣਾ ਇਹਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਝੂਠੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਂ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕੀ ਔਕਾਤ? ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੇੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਹੁਣੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਣਾ। ਚੰਗੇਜ਼ ਭਾਈ, ਚੰਗੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਆਂਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟੋ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਟੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਵੀਲਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਚੰਗੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੱਟੋ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਚਾਂਸ ਦਿਓ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਥੋੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਆਮਿਰ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ। ਆਮਰ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣ ਗੱਲ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁਣ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੀਏ ਚੰਗੇ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੀਏ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਈਏ। ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀ ਗਲਤ ਕੀਤੀ? ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲੋਕ ਬਰਾਡਾਂ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੁਖਲਸ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਭੇਤ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਮੁਖਲਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਬੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦਰਦ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਨਬੀ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਗੈਰਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਬੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਬੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਨਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕਣਾ, ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਭਾਈ ਰੁਕੋ ਯਾਰ, ਜੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਓਏ ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਓਏ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਮਿਰ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਨਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਓ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਲਾ ਦਵਾਂ। ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਈਕ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਆ ਅਬਰੋਡ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ 40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਆ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਜਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਦਜਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਜ਼ੂਲ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਲਾਂਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਨਤ ਬਿਆਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਲਓ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਪਰਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਪਰਦਾ ਪਾਣਾ ਆਇਆ। ਜੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਮੈਂ ਪਰਦਾ ਪਾਣਾ ਆਇਆ ਯਾਰ। ਕੈਸੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਕੈਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਹਲੀਅਤ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਖਾਨੇ ਬੰਦ ਨੇ ਯਾਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣ ਆਏ, ਸਿੱਧਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ। ਲਾਨਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੰਜ਼ੀਰ ਔਰ ਗਲੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਲੋਕੀ ਇੰਜ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕੀ ਉਹ ਕरेंगे, ਲੋਕੀ ਇਹ करेंगे। जो करेंगे वो भरेंगे। अगर बुरी नीयत से करेंगे तो वो भी भरेंगे, अगर नेक नीयत से करेंगे तो वो भी उसका अजर पाएंगे। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਹਨੂੰ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਤੀ ਬੁਝਾਓ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਤਰਬੀਅਤ ਬਕਾਇਦਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਸ਼ਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਬੀ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਹੀ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੀ ਉਹਦੀ ਨਬੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਸ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੇ ਬਕਵਾਸ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀਮ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ? ਉਸ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਾਂਤੀ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਕੇ, ਅਗਰ ਮੁਖਲਸ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖੋ। ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਢਾਓ ਜਮਾਤ ਚੋਂ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। लेकिन सानू पता है कि मैं ये तो कह रहा हूँ, पहले साबित तो हो जाए ना कि वो जमात की औरत है, फिर इसका इखराज कराना है। हम आपको सुने, हम आपको ये कहें कि जी आप इस औरत के बारे में अपने आमिर साहब, अगर हम आपको ये बात कहें कि आप अपने बड़े बड़े उलमा को इस औरत के बारे में आगाह करें और इसको बताएं कि इसके खिलाफ फतवा जारी करो कि ये आज के बाद काफिर है और हमारी जमात से इसका ताल्लुक नहीं, यानी हमारी जमात से इसका पहले ताल्लुक था, अब हमारी जमात से नहीं है, हमने इसको खारिज कर दिया और ये जो भी है। आप मतलब एक तरफ से कह रहे हैं कि अभी किसी ने ऑन नहीं किया, दूसरी तरफ से आप कह रहे हैं कि जी इसका ऐलान करें कि हमने इसको इखराज कर दिया या इसको निकाल दिया। इसका मतलब है पहले हम ऑन करें इसको और फिर ये भी ऑन करें कि ये हमारी जमात की तालीम है, ये औरत भी हमारी जमात की है, हमने इसको तालीम दी है लेकिन हम इसको इखराज कर रहे हैं। ऐसा ना करें, पहले साबित तो हो जाए कि वो कौन है। यहाँ पे मुल्क लोग भी फिरते हैं जिनको ये पता है कि आजकल हमारे और आपके दरमियान क्या इशू गर्म है, उसके ऊपर आके कोई बयानबाजी करके चले जाएं। तो आप बताएं, क्योंकि कल एक बंदे ने ऐसा बयान दिया था, वो मिर्जाई था, सेम बात ये औरत भी कर रही है, लिहाजा ये भी मिर्जाई है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि ये उस चीज का कोई फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है कि ये तो पहले से ही लड़ रहे हैं लेकिन अब इनको मजीद तेल डाल के आग को भड़काया जाए? ये भी सोचिए ना, आप ऐसा ना कह दें कि जी वो इसको निकाला जाए, जमात से खराज किया जाए, इसका बताया जाए। पहले साबित तो हो जाए कि जमात की औरत है। ओके मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਆਉਨ ਕਰੋ, ਆਉਨ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਦਬੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆਉਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਡਿਸਾਉਨ ਕਰਨਗੇ, ਸਭ ਇਹਦੀ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇਹ ਕਹਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਔਰਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਨਬੀ ਔਰਤ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕੋਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਔਰਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ
ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਚਾਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਖਵਾਤੀਨ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਚਾਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਔਰਤ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਹਣਗੇ ਉਹ ਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਬੂਤ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈ ਹੈ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਓਨ ਕਰਨ, ਆਖਣ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰਨ ਕਿ ਆਖਣ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਇਤਜਾਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਮਾਤ ਚੋਂ ਕਢਵਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਸੂਮ ਨਬੀ ਤੇ ਇੰਜ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਅਸਲ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੌਂਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸੂਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਅਸੂਲ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਗੁਨਾਹਾਂ 'ਚ ਮੁਲਵਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੂੜਾ ਚਮਾਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੋਰ ਚੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣ, ਬਦਕਾਰੀ 'ਚ 2-3 ਵਾਰੀ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਚੋਰੀ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹਨੇ ਲੰਬਰਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਬਹਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਨਬੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਜ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਔਰਤ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਮਾਸੂਮ ਨਬੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਾ ਇਹਦੀ ਮਜ਼ਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜਮਾਤ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ ਤੇ ਜਿਸ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਤੇ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰਨੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਦੀ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਦੀ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। मसीह मऊद ने नहीं लिखा सारा कुरान गालियों से भरा हुआ है। मसीह मऊद ने नहीं लिखा ईसा अलैहिस्सलाम शराब पीते थे। वो जो कोई उन्होंने उन्होंने नानियां दादियां के बारे लिखे है, क्यों लिखे है? अगर मेरी मजम्मत करनी तो ओदी मजम्मत कर। उत्थे ही ठप्पी गई ना सारी हर शै, कोई अगों कन्न पूछल नहीं किसे लाया। इस तरह अगर ये औरत है ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਗੀ ਕਿ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਦੀ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਾਦੀਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਸ ਗੱਲੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਮਜ਼ਮਤ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮਾਰ ਚੋਂ ਕਢਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਗੋਲਮੋਲ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਪਰਦੇ ਪਾਓ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਡਾਂ ਚਮਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਬੇਹਯਾਈਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਗੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 52 ਸਾਲ ਸ਼ਿਰਕੀ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ। ਇਹ ਗੰਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਦੀ ਜੜ ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੜ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਦੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਪਾ ਪੋਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦਿੱਤੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਦੀ ਹੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਔਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾਇਣ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਸੂਮ ਨਬੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰ ਗਲਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਜਮ ਸੇਠੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਹਿ ਗਲਤ ਰਿਹਾ ਖਾਜਾ ਆਸਫ, ਪਰ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਜਾਂ ਇਹ ਔਰਤ ਅਗਰ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾਇਣ ਹੈ तो यही कहेगा जो है औरत कह रही है। इस मिर्जायत को अगर तुसी बरात का ऐलान ना करोगे ये तोग तुहाडे गल च ही रहेगा, ये मगरू नहीं लेना तुहाडियों, क्योंकि गंद है निरा मिर्जायत। जे तुहानू एडा नबी नाल मुहब्बत का दावा है या एडा तुसी इत्थे आके ते टसवे बांधते हो ते ड्रामे करते हो ना, थिएटर करते हो, इस मिर्जायत तो बरात का ऐलान करो। आखो असीं लानत भेजने इहदे ते। कल मुंडा आया सी इत्थे राती लाहौर दा, 16-17 साल 18 सालों की उम्र है। 2 हफ्ते पहले सानू गालां कढ के गया, मैनू गालां कढ के गया
ਰਾਤੀ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਲਾਹਨਤ ਭੇਜੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਵੀ। ਇਸ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨਬੀ ਦੇ ਦਾਮਨ ਨਾਲ ਵਬਸਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ 4 ਹਰਫ ਘੱਲੋ ਤੇ ਜਾਨ ਛਡਾਓ। ਵਰਨਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਲੇਪਾ ਪੋਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁਮਕਿਨ। ਇਹ 2 ਕੰਮ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਾਲੀਮ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਰਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਦਾਵਾ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਾਵਾ, ਇਹ ਬੇਅਕ ਵਕਤ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ। ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਹੈ ਹੀ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਨੇ ਜੋ ਗੰਦ ਖਿਲਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਓ, ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤਿੱਕਾ ਬੋਟੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਗੰਦ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਬਰ ਕਰਨਗੇ? ਕੌਣ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦਫਾ ਕਰੇਗਾ? ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ ਉਸ ਬੇਹੰਗਮ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਤੋਂ, ਉਸ ਅਨਕੰਟਰੋਲੇਬਲ ਹਜੂਮ ਤੋਂ? ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ? ਇਸ ਗੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਨਿਰੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਜਾਸਤ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ, ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਕੋਈ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਖੋ ਜੋ ਔਰਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਦੀ ਤਲੀਮ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਆਜ਼ਮ ਸਾਫੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੀ ਔਰਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੇ ਤਲੀਮ ਹੀ ਹੈ ਵੇ। ਨਬੀ ਤੇ ਇੰਜ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਨਬੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਨਬੀ ਇੰਜ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਸੂਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਖੋ ਨਾ ਜਮਾਤ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟਸਵੇ ਬਾਣੇ ਤੇ ਨਬੀ पाक ਨਾਲ मोहब्बत का दावा करना ते आखना असी नबी पाक को मानते हैं, हम मानते हैं, हम कुरान को मानते हैं, नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते हैं, हम उनको सबसे अफजल नबी मानते। बकवास बंद करो। जे इस गंदगी का टोकरा सिर दे उत्ते चुक के टुरना है ते फिर नबी पाक नाल मोहब्बत दा इज़हार इस गले लोकी कहंदे जे आ कलमा ना लिखो दरवाजे दे उत्ते, तुहाडा कलमा किसे काम दा नहीं। ए बकवास करके दरवाजे उत्ते कलमा लिख के लाना जे, ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਸਕਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਲਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਓ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਟੁਰ ਆਇਆ ਯੂਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਮਚਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬੰਨ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਓ। ਕਲਮਾ ਕੇ ਤਰੀਕ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਗੰਦ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਮਾ ਲਿਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ? ਆ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਇਹ ਅਸਲ ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲ ਅਸੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਰਾਜ ਇਹਦਾ ਕਰਾ ਕੇ ਵਹਾਓ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵਹਾਓ। ਇੱਥੇ ਮਰਜ਼ਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਣਾ ਬੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ 2 ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, 3 ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦੱਸ ਸਕਣਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਾਊਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਢਵਾ ਕੇ ਵਹਾਣ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਬਕਵਾਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਟਰੂਥ ਸਰਚਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੇ ਆਜ਼ਮ ਸੈਫੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹੇਗਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। रिव्यू ऑफ रिलीजन लिखी है मिर्जा साहब ने, आजकल फाजल यहूदियों की किताबें पढ़ पढ़ के हम अपने मुरीदों को सुना रहे हैं हर रोज शाम को। क्यों सुना रहे सी? हुण गल होने लगी सी, जोसेफ पट्टी इत्थे बैठा सी, मेरा दोस्त है, भरा है, क्रिश्चियन है, तां की है, इब्ने आदम होंदी सी, इहदे नाल ते भरा है ना, अकीदे दे लिहाज नाल नहीं। नबी पाक दा एहतराम तुहाडे मरज़इयां तो ज्यादा करदा है। और जेड़े लफज असी भी वो नहीं दोहरांदे यहूदियां दे ईसा अलैहिस्सलाम दे बारे जेड़े लफाज ने गंदे, उन्हां दी वालदा दे बारे, सईदा मरियम सदीका दे बारे, वो तुसी लानती इत्थे दोहरांदे हो। कज़ाब कहते हैं, मुखालिफ कज़ाब कहते हैं, मुखालिफ सारे नबियों को कज़ाब कहते हैं। तुहाडे अंदर एक गंद भरे है, तुहाडे लिटरेचर च गंद भरे है। तुहाडा बापू तुहानू एक गंद टोकरा सिर ते धर के गया है कि इहनू चुक के लगा फिरो गली गली, फिर आना सानू मुसलमान नफरत क्यों करते हैं। तक लो, सुन लो नफरत क्यों करते हैं, ये गंद सुन लो, बकवास सुन लो, तुहानू पता लग जाएगा मुसलमान क्यों तुहाडे तो नफरत करते हैं। तुसी मुसलमानां नू दिहाड़ी सारी गालां कढो, कोई मसला नहीं,
ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਗੀ, ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਵਾਸ, ਇਹ ਕੌਣ ਮੁਸਲमान बर्दाश्त करेगा? साड़ियाँ किताबों से पाबंदी हटाओ, पाकिस्तान में जुल्म किया हुआ है, परसिक्यूशन हो रही है। कितने ने राजा ताल मनान साहब ते कितने ने मियाँ जी, ए सुन लो ऑडियो आके, जे आंदे हो तो मैं तुहानू WhatsApp ते कर लेना ते करो इनू आउन या डिसाउन। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मैं ते आज तू 1.5 साल पहले ਇੱਥੇ ਟਿਕਟਕ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅਨਕਰੀਬ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਅਨਕਰੀਬ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਗੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟਕ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੰਦਗੀਆਂ ਸੀ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਛੱਡਣਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਐਡਿਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ WhatsApp ਤੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਆਡੀਓ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨਾ ਉਹ ਰਿਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਗਾਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗੰਦ ਹੈ वो बाहर आ ही जाना है। अंदर का जहर चुन लिया, सब धुल के आ गए। कितने शरीफ लोग थे, सब खुल के आ गए। सूरज से जंग जीतने निकले थे बेवकूफ, सारे सिपाही मोम के थे, घुल के आ गए। ए मोम दे सिपाही तैयार किते मिर्जा कादियानी ने, गंद तैयार किया। जा तुसी सराजे मुनीर नाल जाके लड़े हो, तुसी जितावोगे। सराजे मुनीर नाल मोम दे सिपाही लड़ लैणगे, छित्तर खा के जाणगे मुसलमानां कोलों। ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਮ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੰਦ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੰਗਪਨ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਛੁਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੰਦ ਨੂੰ ਆਉਣ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ 4 ਹਰਫ ਘੱਲੋ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅਮਰ ਅਕਬਰ ਆਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਆਏ ਜਿਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਰੋ। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों, आमिर नज़ीर भाई, अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे। और कोई लुके छुपे नहीं, साढ़े कोल अज भी फाइलां पईयां ने 2020 दियां मौलवी नईम साहब दे नां तो, ठीक है ना जी। सिर्फ मैं बहा देना वा, नईम साहब भी चूँकि मौजूद ने तो मैं चाहया कि चलो तुसी जिक्र कीता है तो असी इन्हां दी, एक मिनट रुकिया जरा, असी इन्हां दी एक फाइल रखी हुई है। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੁਗਲ ਮੌਲਵੀ ਨਈਮ। ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਜੇ? ਕਿੱਥੇ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਇਹ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਓਪਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੇ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੌਲਵੀ ਨਈਮ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੈਟ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ 5-6 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਕੌਣ ਹੈ ਉੱਤੇ, ਵੇਖੋ ਸਲੀਮ ਮੀਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम भी, ਇਹ ਵੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੈਟ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਫਾਈਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ, आपके नबी तो अपने बेटे के, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਛੁਪ ਕੇ ਤੇ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਈਡੀਆਂ ਬਦਲ ਕੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਕੀ ਪੋਸਟਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਮਾਤ ਦਾ ਅਕੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਅਕੀਦਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰੁੱਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਅਹਿਮਦ ਮੀਆਂ ਨੇ ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1931 ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਔਰ ਮੁਰੱਬੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮੁਬੱਲਿਗੀਨ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਆਪਣਾ ट्रेनिंग दिंदा पिया जे बशीरुद्दीन महमूद कहता है कि जनाब हम पर यह एतराज़ किया जाता है कि मिर्ज़ा साहब ने ना ईसा अलैहिस्सलाम जी को गुस्ताखी कर देती है। आगे जाके कहता है कि वो मुखालिफिन को ये कहना चाहिए कि सिर्फ़ ईसा अलैहिस्सलाम की नहीं, इस्लाम की सच्चाई के लिए A to Z अम्बिया की शान में इसी तरीके का रवैया इख्तियार किया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। ए जेना दी हकीकत अल फजल खबार बिल है 1931 हवाला मुतालबे पे।
ਮਕਸਦ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੌੜਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਤੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਾਟ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇਗਾ? ਸੱਪ ਦਾ ਕੰਮ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਡੰਗ ਮਾਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ਿਕਵਾ ਵੀ ਅਗਰ ਹੋ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਿਮ ਹੈ ਸ਼ਊਰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਈ ਉਹ ਚੋਰ ਨੂੰ शिकवा पे कर दो, चोरी क्यों करता है जी? कमाल हो गया यार। सबसे सांप से ये गिला करते हो कि वो डसता क्यों है? तो कादियानियों से ये गिला कि तुम अल्लाह के रसूल की शान में ज़ुबान दराजियाँ क्यों करते हो? हा, तो ये इनसे आप गिला कैसे कर सकते हैं? कमाल हो गया। मैंने एक बार पहले भी आमिर नज़ीर भाई बात की थी, हमारे पास अहमदी हजरात आते हैं, आम दोस्तों के पास भी आते होंगे, आके कहते हैं दिलबर मेरा वही है जिससे है नूर सारा, फैसला बस यही है, दिलबर वही है। हाँ जी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जो मिर्ज़ा साहब ने और जमात अहमदिया ने बयान की है वो किसी ने नहीं की है। ये आके सानू लोलो पोचो कर देने साढ़े विच वड़न वास्ते कि जी हम भी तो दरूद पढ़ते हैं, हम भी तो आपकी शान में गुन गाते हैं, हम भी तो आपकी आली मर्तबत के कसीदे गुनगुनाते हैं, हम भी जनाब आपके साथ पप्पी और जप्फी पाते हैं। आके सानू चूना लाते हैं। तो मैंने उस वक़्त भी इनको समझाया, मैंने कहा आओ तुम्हें एक डेमो से समझाऊं, आओ मेरे पास बैठो, हैं कि शायद बकायद अजीज़ ये साथ ना आ सके, आओ फिर बैठो, हम तुम्हें तुम्हारी दास्तान सुनाते हैं कि तुम करते क्या हो, आओ। तो बैठे ने, मैं क्या, मैं ये कहूँ कि आपके अब्बू बहुत दलेर हैं। कहता वाह वाह क्या कहने हैं आपके। मैं क्या, मैं ये कहूँ आपके अब्बू बड़े जनाब टेक्निकल और बड़े स्किल्ड आदमी हैं। कहता थैंक यू सो मच सर, बस क्या करें, ख़ानदानी ऐसा है। मैंने कहा आपके अब्बू जनाब एकदम हैंडसम, चॉकलेट एंड चार्मिंग गाय, टॉल एंड हैंडसम। कहता सर देखें फिर अल्हम्दुलिल्लाह जीन्स ही ऐसे हैं दादा अब्बू की तरफ से। मैंने कहा अच्छा ये बताऊं कि जनाब आपके अब्बू का रख रखाव और दबदबा बड़ा था, बैठक बड़ी बड़ी थी और जनाब लोग उनकी बड़ी सुना करते थे। कहने लगा बस अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़ानदानी हम वडेरे रहे हुए हैं। मैंने कहा तारीफ़ें काफ़ी हो गई। कहता जी बहुत शुक्रिया आपने मेरे अब्बू की तारीफ़ की। मैं क्या उन फिर काने इधर लिया। कहता जी मैं कान दे विच क्या कि वो तेरा अब्बा मैं वां तो मेरे हत्थी पै गया, हत्थी पै गया मेरे। मैं क्या हाले तो तू कह रहा तारीफ़ां बड़ियां कर रहे हैं। कहता जी आखिर च खच मारी है। मैं क्या फिर मिर्ज़ा साहब ने भी यही खच मारी है। कहता मतलब दिलबर मेरा वही है जिससे है नूर सारा, वाह फैसला बस यही है, सबसे ऊपर वही है, हाँ हुण मैं वां। मोहम्मद अस्त वैन मोहम्मद अस्त, मैं मोहम्मद हूँ, मैं दोबारा आया हूँ। मैं क्या कन फड़ लै हूँ, कन फड़ लै हूँ, कन फड़ लै हूँ, तू फड़ लै। ये बेचते हो सौदा, दुनिया को ये सौदा बेचते हो, ये चूरन और ये ठगी लगाते हो और फिर हमसे उम्मीद रखते हो। ये खुद तो बैठे हैं 7 समुंदर पार, 2 बंदियां ना कुछ नहीं हो सकता, एक जड़ा मर जाए एक जड़ा नहरों पार टुर जाए। तो तुसी नहरों पार जाके सानू चींगे लांदे हो, ओवरसीज़ बैठ के यहाँ इनकी चढ़ती हैं बदमाशियाँ, यहाँ इनको चढ़ती हैं गुदगुदियाँ। पाकिस्तान जंद मैंने सुना सलीम मीर से किसी ने कहा ठीक है हम वेल्डिंग वाला चश्मा पहन लेंगे, तू अपना मकरू थोबड़ा तो दिखा। आगे से कहता है मैं पाकिस्तान नहीं जाना हूँ, तो पाकिस्तान में कदों जावांगा। ये जुमले हैं इसके, ये जुमले चेक करो ज़रा। कहता मैं पाकिस्तान जाना हूँ, पुरानी गल है, उदों तेरा थथा जिहा भी सी। तो कहता है पुरानी पाकिस्तान भी तो जाना होता है। तो जो पाकिस्तान में मौजूद है उसको किधर भेजना है? तुम्हारी इन बदमाशियों, तुम्हारी इन दीदा दलेरियों और जसारतों की वजह से वो पाकिस्तान के अहमदी को जो कोना नहीं मिलता छुपने के लिए, उसका क्या कसूर है? तुम तो खुद अपने ईमान बेच कर और अपनी इज्जतों को नीलाम करके 7 समुंदर पार जाकर चांगरे मारते हो कि हम बड़े बदमाश हैं और पटते हाथ मार के कहते हो जनाब जिन्हें सामने आना आ जाओ। ये बदमाशियाँ तुम्हारी 7 समुंदर पार चलती हैं। हमने उस कुत्ते को भी बहुत भौंकते देखा है जिसके पटे की जो लगाम होती है ना वो उसके मालिक के हाथ में होती है। हमने उस कुत्ते को भी भौंकते देखा है। हमें पता है कि तुम लोगों की औकात और हैसियत क्या है। और आज देखो
चंद टकों के इवज़ एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, चंद टकों के इवज़। ये थी मसीह मऊद की जमात और इलाही जमात का अंदाज़ा, आप चेक करो, ये हालत है। उन जिन्हां दी बदमाशी नहीं मुकदी, आपस में भिड़ गए हैं। तहसबुहुम जमीअन व कुलूबुहुम शत्ता। ठीक है, आप इनको इकट्ठा समझ रहे हो, फूट पड़ी पड़ी है इनके अंदर, नंगा कर रहे हैं एक दूसरे को। और जुमले सुने उनके, मैंने तो वो मुफ्ती मुबशर शाह साहब के भी और दीगर भाइयों ने भी, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दो जी, यहाँ पर माशाल्लाह मुख्तलिफ़ लोग काम कर रहे हैं, अल्लाह इनको जज़ाए सबको खैर दे, आमिर नज़ीर भाई को भी, दीगर भाइयों को भी, कि माशाल्लाह यहाँ पर महाज संभाले हुए हैं और ये ख़बरें हम तक पहुँचती हैं। हमारी सुस्ती अल्लाह माफ़ फरमाए। वो तो वीडियो भैया आ गई, टिकटॉक की स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ गई है। पहले लग रहा था कि एडिट टू एडिट ना हो, किसी ने कोई AI जनरेटेड ना, कि वो तो रियल आ गई सामने भाई, पूरी ब्रॉड चल रही है, 300-400 बंदा देख रहा है। उसमें उसने बैठ के कहा कि जनाब ये लड़कियों को खुशू खुजू सिखा रहा है, इन्हां दा मुअल्लिम। यार हद हो गई है, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तूने गुस्ताखी की थी सैफी, तूने मेरे मरकज़ और मिल्लत पर हमला किया था, तूने मेरे गुरूर पर और फ़ख्र पर हमला किया था, मेरे मुस्तफ़ा और मेरे मुजतबा पर हमला किया था, मोहम्मद व अहमद फ़िदाहु अबी व उम्मी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तू बचकर कैसे जाता? कुरान ने कहा था इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़िईन, ऐ नबी तेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं इनको मजाक और तमस्खुर का एक मुजस्सम नमूना बनाकर पेश कर दूंगा। आज देख लो, कभी दाएं जाता है कभी बाएं जाता है। जो पब्लिक इकट्ठी की थी, भांडा फूट गया, चौंक के अंदर हंडिया टूट गई कि जो 4 लोग इकट्ठे किए थे वो वियतनाम के किराए के टटू थे, वो ची पाँ पिंग पाँ पू पाँ थे, वो नस्लें हैं बेशुमार का एक नमूना थे, वो इंसानों की यार की एक झलकती तस्वीर थे, वो जाए नफरत का एक नमूना थे, वो ज़ुर्रियतुल बगाया की एक ताबीर थे। वो सामने आ गया, खुद नोच लिया एक दूसरे को और हकीकत खोल दी। एक उधर से बोला, वो कहता है हमें पता है तू कितने पैसे लेके भागा हुआ है, जलालत तुम्हारा मुकद्दर बन गई। तुमने जब, जैसे नज़ीर भाई, आमिर नज़ीर भाई कह रहे थे, तुमने सिराजे मुनीर की तरफ आंख उठाकर देखा, बज़म होकर रह गए हो। उनकी शान में तो आवाज़ें झुक जाती थी, बुलंद नहीं होती थी, कि कुरान ने कह दिया था ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी आवाज़ों को धीमा कर लो, तुम्हारे सांस की फड़फड़ाहट भी किसी के कान में ना पड़े। तुम्हारी जिसारतें देखकर खून तो अलग खोलता है, रूह कांप जाती है। ये वो नबी था जिसकी अतात पर तुम्हारा नबी दम भरता है कि जनाब मुझे कोई जो है वो मिल गया रुतबा। तुम उसी की शान पर डाके मारना शुरू हो गए, उसी की शान पर। यह हालत हो चुकी है, अफसोस। तो आमिर नज़ीर भाई, मैं यही कहा करता हूँ, आप इनसे उम्मीद लगाते हैं। मैं पहले भी आया था, सुन रहा था, तो आप इनसे कह रहे थे यार जिससे अच्छाई की उम्मीद करते हैं वही जनाब जो है वो खंजर खोपता है। तो इन्हीं के लिए शायर ने कहा था ना कि हमें उनसे है वफ़ा की उम्मीद जो नहीं जानते वफ़ा क्या है। जिन माओं के दूध में वफ़ा ना हो, जफ़ा हो, उनसे वफ़ा कैसे फूट सकती है। अफसोस, सद अफसोस। तो औरत हो या मर्द, कता नज़र इससे कि किस जिन्स से है, हमने देखा है कि उनकी ज़ुबानें गज़ गज़ लंबी हो जाती हैं जब आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करने पर ये लोग तुल पड़ते हैं। हमने देखा है औरत क्या है और मर्द क्या है। तो तरबियत का अंदाज़ा इससे हो सकता है, ये हकीकत है। कुत्तों की तरह एक दूसरे को पड़ गए। एक थले भी आया, वो भी पै गया, वो भी पै गया जनाब। एंड कर देंगे, जट होने असी फलाने होने, असी फलाने होने, असी ये होने, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। वाह भाई वाह, हैं ये बातें हम करते थे। हमें कहते थे ओ मुसलमानों तुम्हारी तो दुश्मनी है, तुम्हारा बुग़्ज़ है, और ख़ुद उनकी चड्डियाँ उतार कर रख दी, खुद उनकी शलवारें उतार दी पब्लिक के अंदर। दीगर भाई भी बात कर लें, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे जी। बस ये दर्द दिल था जिसको रखना मकसूद था कि ये जमात के तुख़म के अंदर ये बात पड़ी हुई है कि अगर मिर्ज़ा कादियानी की कोई शान बयान नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हाथ तंग है और कहत साली का समा है और इसी तरीके से बहरान दिखाई देता है मिर्ज़ा साहब की सीरत में को ख़ासा
फुदक कर निकल ही आए कहीं से खोखला सा, तो चलो अंबिया की शान को नाउज़ बिल्ला नापाक हाथों से नोचने की नाकाम कोशिश करते हैं। जी जनाब। जज़ाकुमुल्लाह खैर वसुम्मा अहसनल जज़ा फिद दुनिया वल आखिरा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। इनका ये गंद लोगों के सामने रखना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक कुछ लोग या तो जानबूझकर झूठ बोलते हैं या फिर अभी तक वो बेवकूफ़ बने हुए हैं और उनके दिमाग में ये, जिस तरह वो ग्रूमिंग कर देते हैं ना, तो दिमाग में ये बात डाल दी गई है और उनकी ज़हन साजी हो गई है कि आप मुसलमान हैं, आप नबी पाक का कलमा पढ़ते हैं, नबी पाक का नाम लेते हैं, दरूद पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो आप मुसलमान हैं। हालांकि चीख चीख कर पूरी मुस्लिम उम्मत कह रही है कि तुम मुसलमान नहीं हो, ये इस्लाम नहीं है, ये शातमियत है, ये कुफर है, ये इल्हाद है, ये बेहयाई है, इसको छोड़ दो। लेकिन वो ऐसे उनके दिमाग में घुसी हुई है बात, जिस तरह तकिया कलाम नहीं होता अंदाज़े गुफ्तगू में उनके, आप देखेंगे तो वो जब भी बात करेंगे उनका अंदाज़े गुफ्तगू ये है कि वो कंपैरिजन करते हैं फ़िरक़ों के साथ अपना, कोई अहमदी हो, कोई बरेलवी हो, कोई देवबंदी, ये रूटीन है हर मिर्ज़ाई की। वो जब भी बोलेगा वो अपना कंपैरिजन करेगा फ़िरक़ों के साथ, कि जैसे ये कोई फ़िरका है, हालांकि ये फ़िरका नहीं है। कई दफ़ा ये बात बताई जा चुकी है, ये फ़िरका नहीं है मुसलमानों का, ये कुफर है, ये ज़िंदगियत है, ये इल्हाद है, लेकिन नहीं मानना। क्यों? ज़हन साजी की हुई है बड़ों ने। लेकिन एक बात जो आपने कही ना उसके बारे में, जिसने अभी चंद ही रोज़ पहले मासूम नबी की गुस्ताखी की और उसके ऊपर आके सफाई दी और कहा कि अगर मैं गलत हूँ तो मेरा मसीह मौद भी फिर गलत है, अगर मुझे कोसते हो तो उसको भी कोसो। उसके बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बड़ी अहम बात है। अगर कोई साथी रिकॉर्ड करना चाहे तो इसको रिकॉर्ड भी कर ले, वीडियो में दिखाता हूँ आपको। अमर भाई आपने ध्यान से बात सुननी है, क्योंकि इस पर फिर आप तबसरा भी करवाना है। हमतन गोश जी। ये ना चंद रोज़ पहले 12 मई को मैंने मोबाइल चेंज किया, दूसरे मैसेज उनके दूसरे मोबाइल में रह गए। ये मुझे मैसेज करते हैं जी मौलम साहब और कहते हैं कि सरकारी वलीउल्लाह साहब आपको तो नंगा कर दिया अस्कानी ने, शायद इसी वजह से आपने स्टेटमेंट दी थी कि मुझे मुसलमानों के पास मत दफनाना। वो पीर अस्कानी साहब जिस तरह उनकी आदत है वो मुझे कोस रहे थे, इन्होंने वो वीडियो उठाई और मुझे सेंड करके ये कमेंट किया। चलें, उसके बाद मैंने पूछा कि दज्जाल के मौजू पर बात करनी नहीं करनी। आज सुबह मैंने इनको ये वीडियो भेजी है, ये वाली। किया कि हुजूर ने मना किया हुआ है मुरब्बियान को और मुल्लमीन को कि टिकटॉक इस्तेमाल नहीं करना। इसने कहा मैं करूंगा, तुम जो मर्जी कर लो। पैसा लगा भाई, पैसा आता है, प्लाट खरीदे जाते हैं, माल आता है। उसने मौलमशिप को लात मार दी, जिसने खलीफाबाद को नाराज किया। मेरे ठुड्डे की नोक पे है वो बंदा, मेरी जूती की नोक पे जो खलीफाबाद का नाफरमान है। फिर सुन लो, फिर आज आजम सैफी तेरी कोई औकात नहीं रही दुनिया के अंदर। तू खलीफाबाद का नहीं हो सका। तू किस मुंह से तबलीग करता है दुनिया को? किस मुंह से तबलीग कर रहा है? तू तो खलीफाबाद का नहीं हो सका जो खलीफा। ये मैंने वीडियो भेजी तो मैंने एक मैसेज लिखा, बस सुना ही देता हूँ मैसेज भी आपको। हाँ भाई मौलम साहब, क्या मैं भी अब आपको यही अल्फाज लिखूं कि आपको तो नंगा कर दिया मसरूर ने? क्या ख्याल है, लिख दूं मैं भी ये मैसेज? जवाब ये मिला है, इंसाफ तो यही है कि आज आप भी कहें मुझे, लेकिन मैंने नहीं कहा। मैंने क्या कहा? नहीं भाई मौलम साहब, मेरी नज़र में ये किसी की फतह और किसी की शिकस्त नहीं है, ये बैनुल अक़वामी बीमारी है, ये हर तरफ है। आपकी टांगें खींचने वाले, आपको गालियां देने वाले आप में लोग मौजूद होंगे। हो सकता है कभी वो सामने ना हो, पीछे छुप कर ये हरकतें कर रहे हो, कभी इस तरह मंजर आंख पर भी शुरू हो जाते हैं। ऐसे हमारे साथ भी ये बीमारियां लगी हुई हैं, तो इसमें किसी की फतह किसी की शिकस्त नहीं। इसको ताना बना के ना चाहिए कि मैं आपको ताना दूं, ना आपको चाहिए कि मुझे इस तरह का ताना दें और कहें कि देखो ये तुम्हारा क्या हाल होगा। ये एक बीमारी और ये हर तरफ पाई जाती है। बल्कि मुझसे पूछे तो ये एक स्ट्रॉन्ग करैक्टर की दलील है, और इस बात की दलील है कि आपकी आवाज़ असर रखती है, उसमें कुछ ताकत है, कुछ
उसकी अहमियत है, इसीलिए लोग आपकी मुखालफत करते हैं, अपने भी और बेगाने भी। आपको पत्थर तभी पड़ते हैं जब आपकी आवाज स्ट्रांग होती है या आपका करैक्टर स्ट्रांग होता है ना, तो अपनों की तरफ से पत्थर आते हैं, मुखालफों की तरफ से भी आते हैं। जिनकी आवाज बेअसर होती है, जिनका करैक्टर बेअसर होता है माशरे में, उनके ऊपर कोई पथराव भी नहीं करता, उनको कोई गाली भी नहीं देता। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, वो बद किरदार भी होते हैं अपने माशरे में, लोग उनका जिक्र भी करना पसंद नहीं करते कि छोड़ो इनका जिक्र करके खामखा से अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है। तो जब लोग आप पर एनर्जी लगा रहे हों, अपने हों या बेगाने, समझो आपका करैक्टर मजबूत है और समझो कि आपकी बात में असर है या कोई उसकी अहमियत है, उसमें वजन है। मैंने सिर्फ यही सुनाना था कि मैंने उसके साथ वो काम नहीं किया, मैंने जवाब में वो हरकत नहीं की कि देखो आज तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें जलील कर दिया, तुम्हें रुसवा कर दिया और तुम्हारे बारे में कह रहे हैं कि तुम किस मुंह से तबलीग कर रहे हो, तुम्हारी एक टका वैल्यू नहीं रही, तुम्हारी एक पैसा वैल्यू नहीं है। मैंने नहीं कहा। मैं कहता हूं कि नहीं, होते हैं लोग ऐसे आपस में भी वो क्रिटिसाइज करने वाले होते हैं, कुछ नहीं होता। आप बड़े अच्छे काम कर रहे होगे, उनको तकलीफ पहुंची होगी इसलिए उन्होंने कहा होगा, लेकिन हकीकत यही है कि ये अल्लाह ताला का ये एक इबरत ज़दा निशान है। हम तो इस तरह की अब बनावटी बातें भी नहीं बनाना चाहते ना, जिस तरह ये कहते हैं हमारे मसीह मौद का इल्हाम है, इन्नी मोहीन मन इराद आहाना तक। हम क्या कहें, हम क्यों इस तरह के ड्रामे करें? हम कहते हैं ये होते रहते हैं मामलात, लेकिन इन बदबख्तों के पास क्योंकि कोई और चीज़ है नहीं पेश करने के लिए, इसको ही अपनी फतह का निशान बना लेते हैं। किसी मुसलमान ने मुझे गालियाँ दी, वो वीडियो भेजेंगे और कहेंगे देखो तुम्हें तो आसकानी ने नंगा कर दिया, देखो तुम्हारी तो मुसलमानों ने कब्र खोद दी, देखो भाई ये हो गया वो हो गया। ये सारी बातें अपनी फतह का निशान बनाएंगे और कभी साथ इल्हाम लिखा हुआ होगा। हमारे मसीह मौद ने कहा था ना, इन्नी मोहीन मन इराद आहाना तक। अब मैं क्या कहूँ, अबुल वफा ने भी एक इल्हाम सुनाया था कि मिर्जाइयों को मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का ये इल्हाम याद है, इन्नी मोहीन मन इराद आहाना तक। लेकिन अबुल वफा ने कहा मुझे किताब व सुन्नत की तालीमात की रोशनी में ये इल्हाम हुआ है, इन्नी मोईन मन इरादा आहाना तक। अल्लाह उसकी मदद करता है। अल्लाह ने कहा मैं उसकी मदद करूंगा जो तेरी मंजी ठोकेगा, जो तुझे बेनकाब करेगा, जो तुझे नंगा करेगा, जो तुझे दुनिया के सामने तुम्हारी हकीकत बयान करेगा, मैं उसकी मदद करूंगा। हमने ये इल्हाम तो अपनी आंखों से हज़ार मरतबा यहाँ पूरा होते हुए भी देखा है। अल्लाह उसकी कैसे मदद करता है, कहां कहां से उसको मदद पहुंचती है। यानी किसी बात में हवाला पीछे से कैसे पहुंचता है, कैसे अल्लाह रहनुमाई करता है सीधी राह की तरफ, कैसे असल हकीकत सामने आ जाती है, कैसे अल्लाह ताला गलती लगने से, ठोकर लगने से अल्लाह ताला उसको बचाता है, कैसे उसको मैदान में फतह देता है और मुखालिफ के आगे, वो मुखालिफ उसके आगे चित पड़ा होता है। इसके हमने हज़ारों निशान देखे। इन्नी मोईन मन इरादा आहाना तक, इसके तो हमने हज़ारों निशानात अपनी आंखों से देखे। बंदे गवाह में पेश कर सकता हूँ। उन्होंने कहा ये बात कहाँ से निकाली हो, किसने तुम्हें ये बात बताई है? उलमा हैं, उलमा कहते हैं। ये बात कहाँ से लेकर, हमारे इल्म में नहीं ये बात। तो हम कहते हैं कि ये हमारा कमाल नहीं है, ये हमारा कमाल नहीं है, हमारी ये ज़ाती कोई कावच नहीं है। हम जैसे फ़कीरों की दुनिया, दुनिया से अलग एक दुनिया है। हम जैसे ही गिरने लगते हैं, शानों से रिदा गिर जाती है। ये चादर नहीं गिरने देती नीचे, वो चादर पहले खिसक जाती है फिर सीधे हो जाते हैं। ये हमारा कमाल नहीं है, ये असल में अल्लाह का वादा है। वरफ़ाना लका ज़िक्रक, ये उस वादे का शेर दोबारा सुनाया जाए। वो शेर है उसका अपना मुनव्वर राना का। हम जैसे फ़कीरों की दुनिया, दुनिया से अलग एक दुनिया है। हम जैसे ही झुकने लगते हैं, शानों से रिदा गिर जाती है। यानी वो जो चादर है ना, रिदा बोलते हैं उस चादर को। ये जो ख़त्म नबूवत की चादर है ना कंधे पर, बंदा नेक नियत होना चाहिए, बंदा साफ दिल होना चाहिए। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कभी गिरते देखा ही नहीं है, कभी उसको घुटनों के बल होते हुए देखा ही नहीं है। ये रिदा उसको गिरने देती नहीं है। शर्त यह है कि बंदा सही हो, क्योंकि गलत लोग हर तहरीक में होते, हर तरफ होते हैं। ये मैं अब भी कह रहा हूँ, तब भी कह रहा था, उसको ऑडियो में भी कह रहा, हर तरफ इस तरह के लोग होते हैं।
अच्छी अच्छी पाक तहरीकों में गंदे गंदे लोग भी, काली भेड़ें भी घुस आती हैं, वो अपना लेके तो वो डफली बजाना शुरू कर देते हैं। उनको अपनी ज़ात की प्रॉब्लम होती है, उनको अपनी कोई मादी मफादात उनके साथ वाबस्ता। तो हम नहीं कहते कि भाई हम मुसलमानों में सारे के सारे नेक और पाक होते लोग, लेकिन अगर बंदा साफ नीयत है तो मैं कसम खा के कहता हूँ अल्लाह वादा ला शरीक की, कि हम जैसे ही झुकने लगते हैं शानों से रिदा गिर जाती है। झुकने नहीं देती ये चादर, वो पहले खिसक जाती है। ये इसका निशान हमने हजार हा मर्तबा देखा, इन्नी मोइन मन इरादा हा नतक। तो हम तो ये भी नहीं कहते कि ये उसका निशान है, ये उसका निशान है, ये वो वाली बात है, ये वो वाली बात है। हम कहते हैं इससे बाज आ जाओ, इस गंदी तालीम से बाज आ जाओ, वरना अल्लाह ताला तुम्हें इबरत का निशान बना देगा इस दुनिया में। अभी महीना नहीं हुआ ना, सफाई दे के गए थे आके ट्रुथ सर्चर की ब्राड पे, 1 महीना नहीं हुआ, देख लो अल्लाह ने क्या निशान दिखाया तुम्हें। तो मैं कहता हूँ इस पे खुद गौर करने की ज़रूरत है। ये हमारा कौन सा कमाल है इसमें? ये अल्लाह ताला का अपना ही कमाल है, जिसने अपने नबी की इस्मत का वादा अपने हाथ में लिया हुआ है। वो अपने नबी की तौहीन करने वालों, मुखालफत करने वालों को जलील करता चला आया है, करता चला जाएगा। उनको बेनकाब करता चला आया है, करता चला जाएगा। झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं कि हम सोशल मीडिया पर बात कर लेंगे, अपने अंदर को छुपा लेंगे, बातन की बात वो हम जाहिर नहीं होने देंगे। मुझे कसम है अल्लाह वादा उला शरीक की, ये एक ऐसी चीज़ निकल आई है ना, ये सोशल मीडिया और बिलखुसूस ये जो वॉइस चैट्स हैं, ये टिकटॉक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, बिलखुसूस ये लाइव चलने वाले, मैं कसम खा के कहता हूँ जो मेरे अंदर है वो बाहर आकर रहेगा, वो नज़र आकर रहेगा। मेरे में कुछ कहते हैं ये तकब्बर है, गुमांड है, ये अपने जैसों को करीब नहीं वो लगने देते, जो कुछ मेरे में है वही कुछ जो आप समझते, जो आपका दिल करता समझना। लेकिन असल शख्सियत जो होती है, जो बंदे के अंदर छुपा हुआ होता है, वो बाहर आके रहता है। वो झूठ बोलता है जो कहता है कि मैं अपने अंदर शातिमियत छुपाई रखूंगा, मुंह से मैं कहूँगा मैं नबी पाक पर दरूद नहीं पढ़ता, मैं नबी पाक पर ईमान लाया हूँ, मैं नबी पाक को खातमुन नबिय्यीन मानता हूँ। जब आते हम जैसे बढ़कर कुछ खातमुन नबिय्यत मान ही नहीं सकते ये सरकारी मुसलमान। ये झूठ है, ये धोखा, ये फ्रेब नहीं चल सकता। अगर अंदर ये गंद छुपा हुआ है जो इस औरत ने बयान किया है, आप इसको छुपा सकते ही नहीं। ये सोशल मीडिया आपके चेहरे से नकाब छीन के नोच के उतार देगा, आपको बेनकाब करके छोड़ेगा। देर कर रहे हो, वक्त ज़ाया कर रहे हो। महीने बाद होना है, 6 महीने बाद इस नतीजे पे पहुंचना है, साल बाद इस नतीजे पर पहुंचना है, आज ही पहुंच जाओ। ये नहीं छोड़ेगा आपके चेहरे पर नकाब। अगर आपके अंदर ये गंद, ये शातमियत ये भरी हुई है, जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तुम्हारा ये जुबान से नबी पाक का नाम लेना, ये दरूद के ड्रामे करना, ये किसी काम का नहीं, कुछ भी नहीं। ये जलील करके छोड़ेगा, आपको बेनकाब करके छोड़ेगा। इसलिए बेहतर है इस मिर्जायत के गंद को, इस टोकरे को उठा के फेंक दें, और उस नौजवान की तरह जिसने कल यहाँ ऐलान किया हमारी ब्राड पे आके हमारे गले लग जाएं। यार हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं, अल्लाह वादा उला शरीक की कसम है। वो लड़का मुझे गंदी गालियां देकर गया 2 हफ्ते पहले की बात है। मैंने कहा यार कोई नहीं, ये कहो ही ना दोबारा मुझे कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे शर्मिंदा ना करो। मैं तो किसी अपने मुसलमान भाई को नहीं कहता कि मैं माजरत करो, माजरत की ज़रूरत ही नहीं है। बस ठीक है, आपको पता चल गया है ना आप गलत राह पे थे, सही राह को पहचान लिया है ना। आप मेरे ऐसे ही भाई हो, जिस तरह ये मेरे भाई बैठे हुए, ऐसे ही आप मेरे भाई, कोई फ़र्क नहीं अब आप में और इनमें। छोड़ दो, ना कहो कि आपने मुझे गालियाँ दी थी। तो बिल्कुल भी आप हमारे दिल को उस तरह नफ़रत ज़दा नहीं पाएंगे जिस तरह से नफ़रत हमारे दिल में आपकी इस गंद की वजह से भरी हुई है। हमारे दिल में नफ़रत इस वजह से है, इस गंद की वजह से जो आपके अंदर छुपा हुआ है, और आपने मुंह पे वो चेहरे के ऊपर चेहरा ओढ़ा हुआ है, लगाया हुआ है नया चेहरा। ये धोखा ना दें, जो अंदर की बात है वो लोगों के सामने बयान कर दें, वरना ये सोशल मीडिया खुद बयान कर देगा। कहीं 7 कोठड़ियों में छुप के भी आप वो गंद नहीं बक सकते जो बाहर ना आए। ये सोशल मीडिया मैं कह रहा हूँ खींच के ले आएगा बाहर। ये पता नहीं कहाँ उसने बात की, कहाँ उसने बकवास की, मुझे पता भी नहीं है, लेकिन आ गई ना बाहर। अंदर का गंद था ना, निकल आया ना बाहर।
ये निकल आएगा। इसको मत छुपाओ। अगर आप किसी को पसंद नहीं करते हो, आप किसी को पीछे गालियां देते हो, मुंह पे भाई भाई कहते हो, सारा कुछ सामने आ जाना है। ये सारा कुछ लेकर आएगा ये सोशल मीडिया। तो आपकी जो असली कैफियत है, मैं आपको नसीहत करता हूँ, मुसलमानों को भी इसकी नसीहत है कि जो आपकी असली है ना हालत, वो बयान करो। जिसको आप पसंद नहीं करते उसको छोड़ दो, उससे पीछे हट जाओ, अपना जाके काम करो। और मिर्जाइयों, तुम भी जो तुम्हारे अंदर का गंद है उसको या तो ऑन करो, सबके सामने पेश करो, या इससे पीछे हट जाओ। इस दस्तबरदारी का ऐलान करके इस्लाम कबूल करो, तुम हमारे भाई बन जाओगे, हमारी बहनें बन जाओगे। लेकिन अगर आप कहो सुक्का नबी पाक से मोहब्बत का इजहार रहना मिर्जाई है, हम आपके मुंह में रेफरी वाली विसल देकर आपकी विसल नहीं सुनेंगे, हम आपको विसल बजाने की इजाज़त नहीं देंगे। जब तक कोई बंदा मिर्जाई है या कोई खातून वो जमात मिर्जाइया से ताल्लुक़ रखती है, हमारा बहसीत औरतों के उनके लिए एहतराम है कि औरतें, हम उनके बारे में कोई बुरा लफ्ज़ नहीं कहना चाहते, भले उन्होंने हमें बुरा भी कहा हो। लेकिन हम आपको ये चांस नहीं दे सकते कि आप हमारे सामने ये ड्रामा करें कि आपको नबी पाक से मोहब्बत है, प्यार है, और ये ड्रामा हो नहीं सकता। नबी पाक से मोहब्बत और प्यार का दम भार ही नहीं सकता मिर्जाई का नबी पाक की मोहब्बत से लेना देना ही कोई नहीं। अगर किसी मुसलमान से कोई ब्लंडर हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगी, इसका फैसला मुसलमानों ने करना है। मिर्जाइयों का इस केस से लेना देना ही कोई नहीं। मिर्जाइयत खुद शातमियत की माँ है, गंद का टोकरा है। कैसे वो कहेंगे कि हम नबी पाक से मोहब्बत के लिए ये ब्राड लगा रहे हैं, फलां मुसलमान के खिलाफ, फलाने के फिक्रे के खिलाफ, फलाने के लफ्ज़ के खिलाफ? आपका कोई हक नहीं है जब तक आप ये गंद का टोकरा उठा के चले। हाँ, मुसलमान हो जाए, आए हमारे साथ बैठे, हम आपसे ज़्यादा, आप अपने से ज़्यादा आपको इज्जत देंगे कि हाँ ठीक है, आपका हक है। अगर कोई मुसलमान गलत लफ्ज़ बोलता है उसकी मजम्मत करें, जो आप कहेंगे हम हमारे भाई हैं, आप बहनें हमारी, कर सकते हैं, आपका हक है। कई मुसलमानों ने पिछले दिनों एक मुसलमान की मजम्मत की है, बिल्कुल ठीक है, उनका हक है, मुसलमान है, उनके दिल को तकलीफ पहुंची है। FIR ही नहीं कटवा सकते, मुद्दई नहीं बन सकते आप। मिर्जाई तो मुद्दई नहीं इस केस के बन सकते, क्योंकि आपको पुलिस वाला कहेगा भी आपकी मुद्दईयत में पर्चा नहीं होना, पर्चा सरकारी मुद्दईयत में हो जाएगा, क्योंकि आपका तो अहले इस्लाम से लेना देना ही कोई नहीं। तो ये मामला अहले इस्लाम का हो सकता है। अहले इस्लाम सिर्फ कह सकते हैं हमारे दिल को तकलीफ पहुंची है फलां बंदे के फलां जुमले से, फलां हरकत से। मिर्जाइयत तो खुद एक गंद का टोकरा उठा के चल रही है और ऊपर से लेपा पोती की हुई है। कई आ जाते हैं, नहीं हम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते। ये सारी ड्रामाबाजी है, या आपकी जहालत है या आप आमदन इस तरह की हरकत कर रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया आपको करने नहीं देगा, मजीद आपको मौका नहीं देगा। वो तारक अजीज अपने नीलाम घर में कहा करता था, पश्तो का एक फिक्रा बोलता था, वो तो नहीं मुझे आता, उसका तर्जमा ये था, अब गलती की गुंजाइश निश्ता, अब गलती की गुंजाइश नहीं है। ये टिकटॉक आपको मजीद गलती की गुंजाइश नहीं दे रहा। छोड़ दें, इस गंद को छोड़ दें, इस्लाम कबूल कर दें। ये गंद है, गंद, ये शातमियत है, शातमियत। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे बड़ी दुश्मन कौम ये मिर्जाइयत है। हो सकता है कोई ला इल्म लोग ना जानते हो, उनको ग्रूमिंग की गई हो, नहीं आप तो अच्छे भले मुसलमान, देखो दरूद नहीं पढ़ते तुम, लेकिन ये ग्रूमिंग है आपकी, आपको समझ नहीं आ रही है। मेरा एक यार कहता था, जिसके सेरे बजे होते हैं ना, उसको नहीं पता होता आले दुआले क्या हो रहा है। तो आपके बंदे हुए सेरे, आपको लोगों ने दिया हुआ धोखा, कारीगरों ने, दुकानदारों ने, आपको पता नहीं चल रहा। हकीकत यह है कि ये मिर्जाइयत, ये शातमियत की माँ है। ये लिटरेचर सारा इसी बात से, इसी असूल के गिर्द घूमता है कि अगर मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी झूठा है तो सारा इस्लाम ही झूठा है। अगर मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की बातें झूठी है, फिर किसी नबी की भी नहीं सच्ची है, सबकी झूठी है माज़अल्लाह। खुद उसने लिखा है कि मेरे ऊपर तो कोई इतराज़ तुम कर ही नहीं सकते जो पिछले नबियों पर नहीं जाके पढ़ता। ये असूल वो देकर गया है कि अगर मैं झूठा हूँ, सारा इस्लाम ही झूठा है। तो इस असूल से जितने मिर्ज़ाई कारीगर हैं, जो मरब्बी हैं, जो हमारा मुकाबला करने की बेचारे कोशिश करते हैं अपने आप को कैमोफ्लाज करके अपनी ब्राडों पे छुप छुपा के बैठ के, वो इसी असूल पर तो गाड़ी चला रहे हैं कि अगर मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी झूठा है तो फिर किसी नबी को भी नहीं हमने सच्चा कहने देना। तो ला महल्ला ये काम तो वो करेंगे, ये तो होगा।
ये शातमियत तो होगी उनसे, क्योंकि असूल ही गलत है ना, ये असूल ही गलत है। इस्लाम का ये असूल नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम के बारे में हम इस तरह की बात तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तालीक बिल मुहाल के तौर पर भी नहीं ज़ुबान पे लाते। इल्ज़ामी रंग में भी ईसा अलैहिस्सलाम को गाली नहीं दे सकते। लेकिन आपका असूल ही ये है। तो इस असूल पर अगर चलना है तो ये गंद आपके गले पड़ा रहेगा, ये काम होते रहेंगे। बेहतर है इस्लाम कबूल कर लें, 4 हरफ लानत के भेजें मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी पर भी, उसके झूठे दावे पर भी, और इस सारी मिर्ज़ाइयत पर भी, और कलमा पढ़ें और कहें भाई हमें वही इस्लाम हमारे लिए काफ़ी है जिसमें ये आयत नाज़िल हुई थी, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। वही काफ़ी है। हमें किसी नए इल्हाम की, किसी ऐसी ये शैतानी वही की कोई ज़रूरत नहीं, ना इसके झूठे दावे की ज़रूरत है। हमारे लिए वही दीन काफ़ी, वही इस्लाम काफ़ी है। हम उसी पर वापस आते हैं। आ जाए वापस। जी भाईजान, जिसने बात करनी करे। अल्लाह जी जिंदाबाद। आमिर नज़ीर भाई, आपने सैफ़ी की जो छोटी छोटी नटखट शरारतें हैं, इसका मतलब है इसने अपनी आदत, बेचारा ठीक था, अच्छा भला था, ये टिकटॉक ने इसको, वो कहता है ना, थोड़ी सी अकल लाए थे हम भी मगर अदम, टिकटॉक के हादसात ने दीवाना कर दिया। अब मसला ये है कि जब तक ये व्हाट्सएप में छुपा रहा, बड़ी चूचू कूचू मूचू मूचू अच्छी अच्छी बातें करता था, कभी हमसे भी पूछता था, आमिर हक साहब बताइए ना, इल्मुस्सर्फ का ये क्या, इस बाब का मतलब क्या बनता है, शागिर्दियाँ इख्तियार करता था। अब देखें आपने चैट दिखाई तो इसके तेवर बदल गए। मिर्ज़ा साहब भी दावा जात में हाथ हल्का रखा करते थे, मगर अफसोस कि जब माल गोदाम और ठीक ठाक थपंटू और रोकड़ा इकट्ठा हुआ तो वो एक गाना भी है ना जी, हाँ, पुराने टाइम का, वो क्या कहता है, हाँ, जेब में जो नोट होवे दुनिया सलाम करे, अपने पराए सबको पैसा गुलाम करे। जेब में जो नोट होगा लोग अदब से बोलेंगे, हरे हरे नोटों की जय जयकार है। वाह! अब थोपड़ा और रोकड़ा और थपंटू इकट्ठा हुआ, दथियाँ लगनी शुरू हुई, तो स्मार्ट वॉच के लश्कारे भी हमने कैमरे में देखे। हमने जनाब स्टूडियो माइक का जनाब खड़खड़ाना भी और सेटिंग भी टिकटॉक के ऊपर देखी। यहाँ इसके शशके ही ख़त्म नहीं होते, इसकी शोबदाबाजियाँ ही ख़त्म नहीं होती, ये हमने देखा। और ये आपको जनाब मैसेज के साथ स्माइलियाँ हंस रहा है, ठट्ठा काट रहा है, मजाक उड़ा रहा है। मैं तो हैरान हूँ आपके ऊपर कि आपने इतने ठंडे मिजाज के साथ इसको आगे से रिप्लाई करके बैलेंस किया कि देखो यही तो तुम्हारे लोग कर रहे हैं, क्या कहा जाए, इस पर हंसा जाए, तुम्हारे लोग ये कर रहे हैं। अगर हमारी तरफ से कई लोगों को गिला शिकवा है तो उनका भी हक है, जिस तरह तुम्हारी तरफ, अगर इसको सदाकत की अलामत या सदक और किज़्ब के जांचने का मेयार बनाना है तो फिर मुश्किल पड़ जाएगी जमात अहमदिया के लोगों की, क्योंकि आपके यहाँ तो ज़ुबानें गिज गई होती हैं, बल्कि ट्रेंड हो चुकी होती हैं अंबिया के ख़िलाफ़ भौंक भौंक कर। आप तो अपने आप को तुन और पुन के रख दोगे, आप तो तल और फ्राई करके रख दोगे अपने आप को। ये हालत है। और सिर्फ एक के लिए मसला ये है कि जनाब टिकटॉक दी गिफ्टिंग आ जावे और जनाब मैं लाइमलाइट ले लूँ जमात अहमदिया का, मैं मुअल्लिम और मुरब। अच्छा, वो जो आपने ऑडियो सुनाई है उसके अंदर तो उसने कहा है इसने मुअल्लमियत को बूट की नोक पर रखा है, और इसलिए नहीं कि कोई बड़ा मुनसिफ था, बड़ा मुअतदिल था, बड़ा इंसाफ पसंद था, ना, इसलिए कि उसको लगा जमात दे बेचते पे ही कुछ नहीं। इधर 20-25 हज़ार इंडियन रुपीस की खातिर 2-2 टके के लोगों की बात सुनो, वो दुम हिलाने को कहें तो दुम हिलाऊं, वो बैठने को कहें तो बैठूं, वो भौंकने को कहें तो इस्लाम के ख़िलाफ़ ये लोग भौंकें। उसने कहा ये तो सौदा बारे का नहीं है, ये तो घाटे का और खसारे का सौदा है। उसने फिर मुंतखब किया कि चलो इनमें से कोई भी ये जुर्रत नहीं रखता कि अपने मुंह के साथ आए, क्यों ना मैं ये एज और फ़ायदा हासिल करूं।
लिहाजा आज़म सैफ़ी ने जनाब अपना एक खुडा तैयार किया और एक रिवॉल्विंग और रोटेटिंग और जनाब मूविंग किस्म की चेयर उसने ख़रीदी, और सुनने में आ रहा है कि जर्मनी से ठीक ठाक इसको थपंटू इकट्ठा हो रहा है। भाई देखें भाई, अगर इन्होंने पहले कहा, इन्होंने यहाँ तक